So, a very good morning, students. Once again, I welcome you all for the online lectures series on railways, airport, and waterways. This online course is basically designed for the Department of the Civil Engineering students. So, this is actually the continuation part of the lecture 3. Lecture 3 has been divided into part 1, 2, and 3 respectively. So, this will be the third part of the lecture 3. So, this is actually the part of the module 1. Actually, the railways, airport, and waterways course is designed in such a way that it has been divided into 5 modules, right? And the first module is about the introduction to railways. And in this first module, I have divided into 8 different lectures. Till now, we have covered lecture 1 and lecture 2. This will be the third part of the lecture 3. And this will also brings to the end of the lecture 3. Lecture 3 has been designed to describe the rails, definition of rails, types of rails, defects in rails, and creep in the rails. So far we have covered the what is the introduction part of the rails, requirements of the of an ideal rail, types of different rail sections, defects in the rail section, creep of rails, and theories of creep. Okay, and now we will cover the effect of creep, remedies of creep, and the coning of the wheel. So we know that what is creep. Okay, it is a longitudinal movement of the rail along with the sleeper. Okay, so till now we have covered the defects, the methods to reduce the wear, creep of the rail, as well as also we have a brief introduction to theories of creep. There were 5 different theories: wave theory, drag theory, percussion theory, starting, accelerating, slowing down, or stopping of a train theory, and balanced traffic theory. And what are the factors affecting the magnitude and direction of creep, effects of the creep. Okay, so we'll start with the remedies of creep. We'll start with actually the effects of creep. Okay, we'll have the recap of the effects of the creep, and then we'll move toward the remedies of the creep. Okay, I have told you what is creep. Okay, the definition of the creep has been defined to you. Now, the different effects of creep are given as below. Okay, we'll look at one by one. We'll just revise it. We'll not go into deep because in previous lecture, that is in part 2 of the lecture 3, I've already covered each and every aspects of this, different effects of creep. So start karte hain. The most serious effect of creep is being buckling of a track. तो जो सबसे सीरियस इफेक्ट है आपके क्रीप का वो है द बकलिंग ऑफ अ ट्रैक. ओके, एंड सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द क्रीप आर, पहला है स्लीपर्स मूव आउट ऑफ स्क्वायर आउट of the position, affects the gauge and alignment of the track. As sleepers move, surface is disturbed, results the uncomfortable riding. Okay, so serious effect of the creep is the buckling of the track, and some common effects of the creep. The first one is that कि sleeper अपने position से move out हो जाता है, dislocate हो जाता है. तो अगर sleeper अपने position से dislocate हो जाएगा, then what will be the effect? It will affect the gauge and the alignment of the track. Okay, as the sleeper move, surface is disturbed. जब sleeper अपनी position से dislocate होता है तो जो उसका surface है वो disturb हो जाता है और उसकी वजह से uncomfortable riding होती है, right? दूसरा है when joints are opened out beyond the permissible stress in bolt and fish plate, tendency to occurrence of failure in them. जब हमारा जो जॉइंट्स है वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा ओपन किया जाता है. ओके, बिकॉज द bolts and the fist plates are designed in such a way that it has some permissible stress. When joints are opened out beyond the permissible stress in bolts and fist plates, tendency to occurrence of failure in them. No doubt, ये पॉइंट बस इस तरह आप क्लियर करो कि जब परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा जॉइंट होगा, ओके, जब परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा जॉइंट होगा तो इट विल लीड आउट टू दी
failure. It will lead out to the failure in the bolts as well as the fist plates. Okay, because the fist plates and bolt will have tendency to move out from their original position. Okay, फिर तीसरा कॉमन इफेक्ट है, रेल एंड्स आर also battered due to occurrence of excessive gap at joints, while at other places joints are jammed and prevent required expansion due to the thermal stress. So rail ends also battered due to occurrence of excessive gap at the joint. जो end part होता है आपके रेल का वो क्या होता है, battered हो जाता है. And why this battering action takes place? It is due to the occurrence of the excessive gaps at the joints. Okay, so while at the other places joints are jammed and prevent the required expansion due to the thermal stresses. So we have seen three common effects of the creep. पहला है कि स्लीपर अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा. दूसरा है जब जॉइंट जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस के बियॉन्ड ओपन होगा तो फिस्ट प्लेट्स और जो बोल्ट्स हैं वो फेल कर जाएंगे. ठीक है, जो उसको डिजाइन किया गया है वो फेल हो जाएगा, फेलियर होगा उसका. और तीसरा है कि रेल एंड्स आल्सो बेटर ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ एक्सेसिव गैप एट द जॉइंट. जब आपका क्रीप होता है तो जॉइंट्स पे एक्सेसिव गैप होता है, तो एक्सेसिव गैप की वजह से हमारा जो रेल का एंड पार्ट है वो बैटरिंग एक्शन शो करेगा, बैटर्ड हो जाएगा. राइट. सो अब थोड़ा सा और हम कॉमन इफेक्ट देखते हैं क्रीप का. और हमें कॉमन इफेक्ट कहां पे दिखेगा, और हमें कॉमन इफेक्ट दिखेगा पॉइंट्स इन क्रॉसिंग पे. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको मैंने पॉइंट्स इन क्रॉसिंग दिखा रखा है. राइट. ये है आपका बेसिकली ये जो दोनों डायग्राम है ये पॉइंट्स इन क्रॉसिंग के बारे में बता रहा है. तो जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग है वो क्या होगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है. ठीक है, क्रीप की वजह से these points in crossing get distorted and it's too difficult to set them to the correct gauge and alignment. Okay, movement of the switches is made difficult and interlocking is thrown out of the gear. Okay, so जो points in crossing है it get distorted and it's become too difficult to set them to the correct gauge and alignment. देखो जब रेल की बात होती है तो हमारा प्राइम मोटिव ये होता है कि जो अलाइनमेंट है और जो गेज है वो करेक्ट होना चाहिए. राइट. लेकिन जब हमारा क्रीप है, क्रीप इफेक्ट होता है तो क्रीप की वजह से क्या होता है, क्रीप का मतलब ही हुआ कि डिसलोकेशन ऑफ द स्लीपर और द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल अलोंग विद द स्लीपर. तो नो डाउट जो आपका पॉइंट्स और क्रॉसिंग पे अगर क्रीप होता है, ठीक है, वहां एक्सेसिव जॉइंट्स फॉर्म होते हैं या वहां पे आपका डिसलोकेशन होता है, तो जो आपका पॉइंट्स और क्रॉसिंग है वो क्या होगा, वो अपने शेप से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. और जब अपने शेप से डिस्टॉर्टेड कोई चीज हो जाएगी तो नो डाउट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेट देम टू द करेक्ट गेज एंड द अलाइनमेंट. ओके, मूवमेंट ऑफ द स्विचेस इज मेड डिफिकल्ट एंड इंटरलॉकिंग इज थ्रोन आउट ऑफ द गियर. ओके, तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इफेक्ट है. अब थोड़ा सा और इसका इफेक्ट देखते हैं. It is very difficult. It is difficult to fix the removed rail at proper position during repair work since the time gap becomes too short or too long due to creep. Okay, तो ये आपका जो एक बार रेल अपने फिक्स पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है तो उसको फिक्स करना. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिमूव रेल एट प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग रिपेयर वर्क सिंस द टाइम गैप बिकम्स टू शॉर्ट और टू लॉन्ग ड्यू टू क्रीप. ठीक है, स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट, बोल्ट, बेंडिंग ऑफ बार्स, किंग साइड जॉइंट्स ऑफ रेल्स एंड फॉर्जिंग ऑफ बैलेस्ट आर हेड कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द क्रीप. ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट आपको दिखेंगे क्रीप की वजह से, वो है स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट, बोल्ट, bending of the bars, kinks at the joints of rails and forging of the ballast ahead are the common effects of the creep. If creep is not prevented in time, it will result in derail. ठीक है, तो सबसे कॉमन इफेक्ट ये है कि अगर आपने क्रीप सही टाइम पे फिक्स नहीं किया तो इट विल लीड टू द derailment of the rail. Why? Because
डीरेलमेंट कब होता है? जब आपका जो रेल है वो करेक्ट अलाइनमेंट पे फिक्स ना हो, उसका गेज करेक्ट अलाइनमेंट पे ना हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो। और क्रीप कहता क्या है? क्रीप का मतलब ही हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल अलोंग विद द स्लीपर। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो वहां पे जॉइंट्स पे एक्सेसिव गैप फॉर्म हो रहा है। और जब एक्सेसिव गैप फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलाइनमेंट है, जो उसका गेज है, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और जब उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या होगा? इट विल लीड टू द derailment. So if creep is not prevented in time, it will result to the derailment, right? So these are actually some of the common effects of the creep. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रेमेडीज ऑफ क्रीप, ठीक है, ये तो देख लिया कि क्रीप क्या होता है, थ्योरीज ऑफ क्रीप भी हमने पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया व्हाट आर द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द क्रीप। अब सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें फोकस करना है कि व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ, ओके, कि हम कैसे उसका प्रिवेंशन करें। व्हाट आर द रेमेडीज? रेमेडी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेमेडीज वन बाय वन विल सी द रेमेडीज ऑफ द क्रीप। So the very first part is pulling back the rail, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका pulling back the rails, okay, pull back the rail to its original position, ठीक है। अगर आपका क्रीप होता है तो क्रीप की वजह से जो रेल है वो डिसलोकेट हो जाता है, उसके अलाइनमेंट में डिसलोकेशन होता है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? उसका रेमेडी ये है कि पुल बैक द रेल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब हमें रेल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना है। कैसे? बाय मींस ऑफ क्रोबार्स एंड हुक्स प्रोवाइडेड थ्रू द फिश बोल्ट एंड होल्स ऑफ द रेल, राइट? सो we have to pull back the rails to its original position, और उस ओरिजिनल पोजीशन पे हम कैसे लाते हैं? बाय मींस ऑफ द क्रोबार्स, ओके, जो टूल यूज करते हैं उसके अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रोबार्स या हुक, which is provided through the fish hole of the rail, okay, by considering the position of joint relative to sleepers, and both rail should be in respective position, ठीक है। फिर हमको क्या चेक करना है कि जो उसका जो जॉइंट है, ओके, कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द जॉइंट रिलेटिव टू द स्लीपर, तो जब हम उसको कंसीडर करेंगे तो both the rails should be in respective position by considering the position of joints relative to the sleeper, and both the rails should be in respective position, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने देखा क्या? पुलिंग बैक द रेल, मतलब उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आओ। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए सबसे पहला काम हम कौन से टूल का यूज कर रहे हैं? क्रोबार्स का और हुक्स का, ठीक है। दूसरी रेमेडी है प्रोविजन ऑफ द एंकर्स, ठीक है। एंकर्स क्या होता है? एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब होता है टू फिक्स समथिंग, ठीक है, टू कंसोलिडेट समथिंग, ओके। सो बाय यूज ऑफ एंकर्स एंड सफिशिएंट क्रिप बैलेंस, ठीक है, फॉर क्रीप 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, 4 एंकर्स पर रेल, एंड फॉर क्रीप 22.5 टू 25 सेंटीमीटर, 6 एंकर पर रेल, ओके। तो जो एंकरिंग है वो उसका भी एक प्रोविजन है, ठीक है, और उसके भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि अगर आपका क्रीप 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच का है तो 4 एंकर्स हम यूज करेंगे। लेकिन ये बहुत एडवर्स आपका क्रीप है, तो एडवर्स क्रीप कैसे डिफाइन होता है? जब 22.5 टू 25 सेंटीमीटर, क्यों? जो डिफ्लेक्शन है वो किससे मेजर करते हैं? वो डिस्टेंस से मेजर करते हैं। जैसे 7.5 टू 15 सेंटीमीटर, यूनिट क्या लिया हमने? सेंटीमीटर, ठीक है। उसके लिए हम 4 एंकर्स पर रेल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो 22.5 टू 25 सेंटीमीटर होगा तो उसके में कितना एंकर यूज करेंगे? 6 एंकर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेल है उसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, उसको हम एंकर कर दे रहे हैं, राइट? तो ये हो गया एंकर से। तीसरा पार्ट है यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स, ठीक है। स्लीपर्स शुड बी मेड अप ऑफ गुड मटेरियल विद प्रॉपर फिटिंग। Sleepers should provide good grip with ballast to resist the movement of the sleeper.
इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्लीपर। ओके, तो हमको स्लीपर्स को भी काफी स्ट्रेंथन करना है, और वो स्ट्रेंथन कैसे होता है कि द स्लीपर शुड बी मेड अप ऑफ गुड मटेरियल, it could be of steel, the material could be of steel, okay, so it will provide a proper fitting, ठीक है। Sleepers should provide a good grip with ballast to resist the movement of the sleepers, and we have to also increase in the number of sleeper, okay। So provision of the steel sleeper is also one of the remedy. Now you can see, just I have told you, using the anchor, okay। तो कैसे हम एंकर को प्लेस करते हैं ये मैंने आपको इस फिगर से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये रहा आपका रेल पार्ट, ठीक है, दिस इज योर रेल पार्ट एंड दिस आर योर स्लीपर। हमने क्या किया, हमने वेज पे, ठीक है, हमने जो ये आपका वेज है, हमने वेज पे एक दोनों तरफ से उसको एंकरिंग कर दी। हमने क्या किया, हमने उसकी एंकरिंग कर दी। अब एंकरिंग अगर 7.5 टू 15 सेंटीमीटर का क्रीप है तो उस केस में हम 4 एंकर्स पर रेल यूज करेंगे, राइट। लेकिन हमने देखा कि ये जो हमारा क्रीप है वो बढ़ के 15 से 22 सेंटीमीटर तक चला गया, तो हम उस केस में 6 एंकर्स यूज करेंगे। So this is actually how anchors are placed by the wedging action, ठीक है। तो हम wedging action के थ्रू एंकर्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। Here you can see the wedge, okay, here you can see the wedge and here is your anchor, this is your anchor। तो स्टूडेंट्स जिसको ये डाउट है कि एंकर क्या होता है, एंकरिंग कैसे हम यूज करते हैं, तो ये है आपका एंकर, और ये रेल को हम स्लीपर के साथ वेजिंग एक्शन से इस तरह से एंकरिंग करते हैं, ठीक है। और अगर हमें स्प्रिंग ग्रिप से प्रोवाइड करना है, हम दो तरफ से प्रोवाइड करेंगे, या तो उसकी वेजिंग एक्शन से प्रोवाइड करते हैं या तो उसकी स्प्रिंग ग्रिप से, ठीक है। तो स्प्रिंग ग्रिप से कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने रेल को स्लीपर से जो है स्प्रिंग ग्रिप उसमें प्रोवाइड करके एंकरिंग प्रोवाइड, तो रोल वही है, बस उसका वे चेंज हो जाएगा। एक बार हमें वेजिंग एक्शन से करना है और दूसरी बार हमको इसको स्प्रिंग ग्रिप से करना है, राइट। सो दिस इज द डायग्राम एक्चुअली डिपिक्टिंग यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंकरिंग डन using wedging theory and spring grip theory. So these are actually the remedies of grip. Remedies में मैंने आपको बताया, सबसे पहला रेमेडी है कि pull back the rails to its original position, उसको पुल बैक करने के लिए क्रोबार्स और हुक का यूज करो, एंकरिंग करो, ठीक है। तो अगर जब अलाइनमेंट अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, उसको एक पोजीशन पे कंसोलिडेट करने के लिए हम एंकरिंग करते हैं। और एंकरिंग दो थ्योरी से होती है एक्चुअली, एक वेजिंग एक्शन से भी हम कर सकते हैं और दूसरा स्प्रिंग ग्रिप से भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका क्रीप 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर है तो 4 एंकर्स पर रेल यूज करेंगे, और अगर 22.5 से 25 सेंटीमीटर है तो हम 6 एंकर्स पर रेल यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा रेमेडी ये है कि जो हम स्लीपर यूज कर रहे हैं वो जो मटेरियल है वो स्टील स्लीपर हो, ठीक है, क्योंकि उससे प्रॉपर फिटिंग होती है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ वेरी गुड ग्रिपिंग टू द बैलेस्ट एंड इट आल्सो रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द wheels on it, okay। So and we have to also increase in the number of sleepers, okay। अच्छा, अभी तक तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्रीप क्या होता है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट। हमने फिर देखा कि उसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या होती है, क्रीप फॉर्मेशन की डिफरेंट थ्योरीज है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी वेव एक्शन थ्योरी थी, फिर परकशन थ्योरी है, ड्रैग थ्योरी है, एक्सेट्रा। फिर हमने देखा कि रेमेडीज क्या है, जिसमें से दो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रेमेडी ये है कि आप जो है उसको अपने पोजीशन पे पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, और वो हम बाय द क्रोबार्स या हुक के थ्रू कर सकते हैं, या हम अपने रेल्स को एंकर करेंगे, जिसमें हम 4 एंकर्स भी यूज कर सकते हैं, 6 एंकर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो है उसकी स्प्रिंग ग्रिपिंग भी कर सकते हैं, और दूसरे केस में हम वेजिंग एक्शन से भी उसको उसकी ग्रिपिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कोनिंग ऑफ व्हील, ओके। नाउ व्हाट इज कोनिंग ऑफ व्हील?
Can you define? How will define this coning of wheel? Okay, so ऐसा है, कोनिंग ऑफ व्हील को डिफाइन करने के लिए अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो एक लाइन में मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि जो लोकोमोटिव के व्हील्स हैं वो फ्लैट नहीं होते, ओके, वो फ्लैट नहीं होते हैं एंड बट स्लोप कर्व या कोन कर्व, कितने स्लोप पे 1/20। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि व्हील्स के जो लोकोमोटिव के व्हील हैं वो दे आर नॉट फ्लैट but slope or coned at a slope of 1/20। तो जो व्हील्स प्रोवाइड की जाती है, जो व्हील्स हम प्रोवाइड करते हैं लोकोमोटिव पे, वो एक्चुअली हम एक कोनिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अब देखिए, अब आगे इसको मैं पार्ट बाय पार्ट समझाने की आपको कोशिश करूंगा। The distance between the inside edges of the wheel flanges P is generally kept less than the cage. This results in a gap of 1 centimeter between the flange and running face of the rail. No need to have any confusion. I will show you the diagram and then only it will be clear to you. ये एक्चुअली डायग्राम मैंने पहले आपको नहीं बताया, पहले मैं आपको डेफिनेशन पे लेके गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। तो ये आप देख सकते हो कि ये कोनिंग को डिस्क्राइब करता है। अब कैसे? वन बाय वन पहले मैं आपको इस डायग्राम के बेसिक कंपोनेंट्स को दिखाता हूँ, ठीक है। लोकोमोटिव के ये दो व्हील्स हैं, एक पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये है, ठीक है। तो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ योर व्हील, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। नाउ दिस इज व्हील फ्लैंज, ओके। ये आपका जो पार्ट है इसको कहते हैं व्हील फ्लैंज, ठीक है। इनर पार्ट को हम व्हील फ्लैंज कहते हैं और आउटर पार्ट को हम व्हील ट्रैक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इस व्हील को, जब ये व्हील फ्लैंजेस आपके रेल्स पर चलते हैं, तो ये जो व्हील फ्लैंजेस हैं एक्चुअली फ्लैट नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये स्लोप्ड होते हैं। और ये स्लोप्ड होता है बेसिकली 1/20 का, 1/20 का। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिंग और द स्लोपिंग ऑफ व्हेन your flanges of the wheel are not flat but they are provided with a slope of 1/20, it is known as the कोनिंग, ठीक है। अब दो चीजें, एक तो मैंने ये बताया था कि ये अगर आपका रेल, एक ए पार्ट ये है और बी ये रेल है, राइट, ओके। सो इन दोनों के डिस्टेंस को, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। सो द मिनिमम डिस्टेंस which has to be maintained between the two rails is known as the gauge। गेज का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। जब दो रेल आपका फिक्स हो और उसकी जो मिनिमम स्पेसिफाइड डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं गेज, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो दो रेल है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस तो गेज जी होगी, ठीक है, हम उसको डिनोट करेंगे जी से। लेकिन जो हमारे दो व्हील्स हैं, दो व्हील फ्लैंजेस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उनके जो इनर पार्ट हैं, उनका जो इनर पार्ट है यहां से और यहां तक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। और ये B हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका G से क्या होगा, लेस होगा। ये हमेशा क्या होगा, G से लेस होगा, ठीक है। और ये जब G से लेस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लैंजेस है वो क्या है, वो फ्लैट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टिल्टेड है, वो स्लोप्ड है, ठीक है। और जब स्लोप्ड है तो उन दोनों की डिस्टेंस में एक डिफरेंस आ रहा है। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि एक रेलवे इंजीनियर को हमेशा बी पार्ट को जी पार्ट से कम रखना ही रखना है, मतलब कोनिंग व्हील की करनी ही करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेल्स पे जो हमारी व्हील्स हैं, जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो फ्लैट ना हो, बट we provide it with the slope of 1/20. This is known as the coning of the wheel or the sloping of the wheel, and
specified coning is 1/20. ओके, तो आई गेस आपको ये डायग्राम तो आप समझ में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा कि द व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव आर नॉट फ्लैट बट स्लोप और कोन्ड एट अ स्लोप ऑफ 1/20, ओके। और दूसरा पार्ट ये है कि द डिस्टेंस between the edges of wheel flanges B is generally kept less than the gauge G. This results in a gap of 1 centimeter between the flange and the running face of a rail. तो कितने सेंटीमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में? ये 1 सेंटीमीटर का है। और ये जो आपका नो नीड टू वरी, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना सेंटीमीटर का है? वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो ये आपका व्हील का फ्लैंज है वो कितने स्लोप पे टिल्टेड है? वो 1/20 स्लोप, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ कोनिंग, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी, तो कोनिंग की थ्योरी को देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके बीच की, क्या इसके पीछे की थ्योरी है। एडवांटेज सबसे पहला ये है कि इट रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ व्हील फ्लैंजेस एंड, ठीक है। तो जब आपका बहुत एक छोटी सी बात है कि जब आपकी स्लोप प्रोवाइड करोगे, आपके व्हील फ्लैंजेस के बीच में और आपके रेल के बीच में स्लोप प्रोवाइड होगा, तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होगा, वो टिल्टेड होगा, तो उसकी वजह से वियर और टियर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इट विल रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ व्हील फ्लैंजेस एंड रेल, ओके। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कोनिंग इज दैट it reduce the wear and tear of wheel flanges and rail, okay. दूसरा, it provide the possibility of the lateral movement of the axle with its wheel, okay. तो दूसरा है कि it provide the possibility of the lateral movement of the axle with its wheel, और तीसरा है to prevent the slipping of the wheels। तो कोनिंग हम प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमारे 3 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। पहला ये कि जो व्हील फ्लैंजेस है और रेल के बीच का जो वियर एंड टियर है वो मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा है कि इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सल विद इट्स व्हील, ठीक है। तो जो आपका लैटरल मूवमेंट है एक्सल का, व्हील, इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सल विद इट्स व्हील। और तीसरा है इट प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स, ओके। It prevent the slipping of the wheels. Now we'll see the theory of coning. On level track, as soon as the axle move towards one rail, the dia of the wheel tread over the rail increases, okay, while it decreases over the other rail. This prevents the further movement and axle get back to its original position, okay. Very fantastic theory, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ कोनिंग से आप समझ जाओगे कि कैसे आपका डीरेलमेंट से बच जाता है, ठीक है। कोनिंग प्रोवाइड करने के बाद हमारा डीरेलमेंट प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। जस्ट सपोज करो एक कोई लेवल ट्रैक है, ठीक है। देयर इज अ लेवल ट्रैक। ऑन लेवल ट्रैक, एज सून एज द एक्सल मूव टुवर्ड्स वन रेल, ठीक है, आपका एक्सल जो है वो एक रेल की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जो डाया है, व्हील ट्रेड का जो डाया है वो रेल पे वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। भैया स्लोपिंग आपने प्रोवाइड किया है ना, तो जो आपका as soon as the axle move toward the one rail, जब आपका एक्सल एक रेल की तरफ बढ़ेगा तो जो व्हील ट्रेड का डाया है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा थ्रू आउट द रेल, ठीक है। लेकिन अदर दूसरे रेल पे वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट। जिस इनर रेल पे, जिस रेल पे है उसमें तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन दूसरे रेल पे क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। तो जब एक पे इंक्रीज करेगा और दूसरे पे डिक्रीज करेगा तो क्या होगा कि इट विल प्रिवेंट द फर्दर मूवमेंट एंड एक्सल विल गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब एक्सल अपने पोजीशन पे कैसे वापस आ सकता है? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट डाया है, ठीक है। जो आपका एक बार पहली रेल का जो डाया है व्हील ट्रेड का वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरी रेल का
दूसरी रेल का डिक्रीज कर रहा है, तो नो डाउट उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे डिरेलमेंट नहीं होगा, इससे आपका व्हील जो है वो डिसलोकेट नहीं होगा, राइट। दूसरा क्या है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, either the wheel must slip by an amount equal to the difference of length or the axle move slightly outward to provide a tread of a longer diameter over the outer rail and a smaller diameter over the inner rail. Okay, so what happened, ड्यू टू दी पहली चीज तो ये कि एक लेवल ट्रैक पे आपका अगर एक्सेल मूव कर रहा है रेल की तरफ, तो जो डाया है व्हील ट्रेड का वो इंक्रीज कर रहा है और अदर रेल पे वो डिक्रीज कर रहा है, तो इट इज प्रिवेंटिंग दी फर्दर मूवमेंट एंड एक्सेल गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज आप कह सकते हो या थ्योरी है वो ये है कि जो रिजिडिटी है, ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, either the wheel must slip by an amount equal to the difference of the length। जब आपकी व्हील की रिजिडिटी मतलब क्या होता है, एक पोजीशन पे फिक्स हो, ठीक है, तो ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, either the wheel must slip by an amount equal to the difference of length or the axle moves slightly outward to provide a tread of the longer diameter over the outer rail and a smaller diameter over the inner rail। ये मैं थोड़ा सा और समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आप एक देखो, जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए मैंने एक डायग्राम लाया हूं, ठीक है। ये है आपका व्हील, ठीक, ये आपके व्हील फ्लेंजेस और ट्रेड, ठीक है, क्लियर है। ये आपका इसका थ्रू आउट दी रेडियस है, ठीक। आप देख सकते हो कि एक रेल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरे रेल का रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको और समझाता हूं, थोड़ा सा और मैं इसको समझाता हूं। देखो, if the tread dia on both the rail is same, then amount of slip is, ठीक है। अगर आपका ट्रेड डाया दोनों पे सेम है, डायामीटर जो ट्रेड का है अगर दोनों रेल पे सेम है, तो अमाउंट ऑफ स्लिप इक्वल्स टू थीटा r2 माइनस r1, ठीक है। और जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस क्या है, वो r2 है। r2 किससे दिखाएंगे, r2 विल बी इक्वल्स टू r प्लस g बाई 2, r2 विल बी r प्लस g बाई 2 और r1 हो गया r माइनस g बाई 2, ओके। यहाँ g क्या है, वो गेज है और एंगल एट द सेंटर इन रेडियस। सो और स्लिप की वैल्यू क्या होती है, थीटा इंटू जी, थीटा इंटू जी, और g की वैल्यू क्या है इस केस में, वो है r2 माइनस r1। देखो, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप का मतलब हुआ थीटा इंटू जी, ठीक है, जो आपका डिफ्लेक्शन है इंटू गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो थीटा इंटू जी, थीटा इंटू जी, जी क्या है, यहाँ पे जो r2 की वैल्यू है वो r प्लस जी बाई 2 है और r1 की वैल्यू है वो r माइनस जी बाई 2 है। तो आपका g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा r2 माइनस r1। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इंटू r2 माइनस r1, ठीक है। तो g इक्वल्स टू, अगर हम ब्रॉड गेज लेते हैं तो g की वैल्यू क्या हुई, 1.67 मीटर फॉर ब्रॉड गेज। कितनी होती है, 1.67 मीटर फॉर दी ब्रॉड गेज, ठीक है। तो स्लिप इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इंटू जी। तो थीटा क्या है, 2 पाई थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ क्या है, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री और इसका जी की वैल्यू क्या है, 1.676। तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ द सेंट्रल एंगल, ओके। अगर आपका ट्रेड डाया, इफ द ट्रेड डाया ऑन बोथ द रेल इज सेम, ठीक है, मान लो वो डी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ स्लिप क्या होगा, स्लिप इक्वल्स टू थीटा इंटू जी, थीटा इंटू जी। जहां आपका आउटर रेडियस जो r2 है वो कितना है, वो है r प्लस जी बाई 2 और r1 है r1 माइनस जी बाई 2, ठीक है। तो g की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई
R2 माइनस R1। G की वैल्यू कितनी हो गई? R2 माइनस R1। अब इस G की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, थीटा इंटू R2 माइनस R1। तो थीटा इंटू G जो हो गया, अब थीटा हमारा क्या है, इस केस में सेंट्रल एंगल बना रहा है, तो 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। और G क्या है, अगर हम ब्रॉड गेज लेते हैं तो 1.67 मीटर, ये हमें पता है, ठीक है। तो थीटा इंटू G हो गया आपका 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ द सेंट्रल। तो स्लिप कितना आया? इट विल बी 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ द सेंट्रल। ओके, so this is actually the theory of coning. So this brings to the end of the lecture 3. So lecture 3, in lecture 3 we have covered different aspects of the rail. We started with what is the definition of rail. We also have introduced about the requirements of the rails, different types of the rail section, defects in the rail sections, creeps of the rail, what are the theories behind the creep, effect of the creep, remedies of